हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। लेट्स सी द फर्स्ट टेक्निक, फंक्शनल फॉर्मेशन। With this technique, Taylor wanted to improve the quality of work, efficiency of workers working at the shop floor level. Shop floor level means सबसे नीचे, सबसे निम्नतर स्तर पे काम करने वाले वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहता था और उनके काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता था। यहाँ पर टेलर बोलता है कि जो वर्कर्स शॉप फ्लोर लेवल पर काम कर रहे हैं उनको एट अ टाइम एक सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शंस न दे करके उन्हें 8 जनों से एट अ टाइम इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू टेलर, one single person does not possess all the qualities which are needed to carry the work effectively and efficiently. So he expected that workers who are working at the lowest level in the organization must receive instructions from at least 8 specialists so that they can improve the quality of their work. So let me remind you, this technique of Taylor is based on principle of division of work of Fayol, and this technique is against the principle of unity of command of Fayol. क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? एट अ टाइम द सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस, बट यहाँ पर आप देखिए एट अ टाइम वन सिंगल वर्कर इज रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 8 बॉसेस. सो व्हाट टेलर डिड, he divided the work at the lowest level, the work of the foreman, into 2 departments, that is the planning in charge and the production in charge. प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 वर्कर्स और सुपरवाइजर्स होते हैं: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन. एंड इन द प्रोडक्शन इंचार्ज, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. So 4 supervisors here under the production in charge and 4 supervisors under the planning in charge. So basically his aim was to improve the quality of supervision by putting the workers under the specialist foreman, and each in charge was given a specialist task. Number 1, instruction card clerk. Under the planning department, the first was the instruction card clerk. Instruction card clerk का वो काम यही है कि अपने वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करना. They were responsible for drafting the instructions for the workers. Second person under the planning department, his work route, that is known as the route clerk. His work is to prepare the route of production. Route of production means the sequence in which the various tasks has to be performed. Number 3, time and cost clerk. This particular in charge is responsible for preparing your time and cost sheet. And 4th is your disciplinarian. This foreman, this person, this supervisor is supposed to ensure the discipline among the workers. Another department was the production department. Production department में 4 bosses हैं हमारे: स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर. स्पीड बॉस का काम ये है, ये देखना कि जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है वो टाइमली हो रहा है, एक्यूरेटली हो रहा है और टाइमली कंप्लीट किया जा रहा है. नंबर 2, गैंग बॉस का काम ये है कि जो भी मशीनरीज और टूल्स चाहिए, दे आर रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर्स. रिपेयर बॉस इज सपोज टू सी दैट ऑल द मशीन्स एंड टूल्स आर इन वर्किंग कंडीशंस. Wherever there is a disruption in between, they can repair the machines and tools. And last is inspector. He is supposed to keep a check on the quality of work, that the work is being done as per the expected quality. तो टेलर के हिसाब से
सुपरविजन के लिए नंबर ऑफ क्वालिटीज चाहिए फॉरमैन में. अकॉर्डिंग टू हिम द क्वालिटीज नीडेड आर इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैक्ट, ग्रिट, जजमेंट, स्पेशल नॉलेज, manual dexterity, energy, honesty, good health, and so on. And according to Taylor, one single person cannot be expected to have all the qualities needed. That is why he divided the work of supervision at shop floor level into two categories, that is your planning department and production department. For example, all those persons who are technical masters, were intelligent, had grit, they were put in the planning department, and people with good health and good energy level were put in the production department, so that the worker at a time could receive the instructions from 8 foremen or 8 specialists, and this would help the workers at the lower level to improve their quality of work and to improve their efficiency for work. So this was the first technique of Taylor, functional format sheet. Now let's see the second technique. Now let's see the second technique of Taylor, standardization and simplification. ये टेक्निक टेलर की बोलती है. यू सी देयर आर टू वर्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. वी विल सी दिस टू वर्ड्स सेपरेटली. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. टेलर के हिसाब से अगर हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स किया जाए, रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट की पैकिंग तक, तो डेफिनेटली हम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी वी कैन मेंटेन फॉर दैट पर्टिकुलर आउटपुट. अब जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, वी डोंट हैव टू थिंक बिफोर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट बिकॉज वी नो दैट द प्रोडक्ट इज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू डोमिनोज, कहीं पर भी किसी भी आउटलेट पे चले जाइए, आप देखेंगे कि पिज़्ज़ा की क्वालिटी सेम रहती है. The way the workers are preparing the pizza, the toppings, the cheese covering, the taste, it remains the same. That means the product is of standardized quality. Apple का प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, because we are assured that the product is of standardized quality. वो standardized quality का प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के वक्त हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए. रॉ मटेरियल के लिए अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल, कॉन्फ़िगरेशन उसी तरीके के साथ होना चाहिए, सारी वर्क प्रोसेसेस उसी तरीके की होनी चाहिए, मैन पावर जो उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए हमें वो भी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. किस कंडीशन में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, दैट टू आर स्टैंडर्डाइज. दैट इज व्हाई वी गेट द आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड quality. And the customer doesn't need to make any inspection regarding the quality because they are assured that the product is of standardized quality. तो टेलर बोलता है it involves fixing certain standards for quality and quantity of goods by using standardized. Everything is standardized. The equipments used for manufacturing the product, the raw material, the production processes, and so on. तो स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स वो बेंचमार्क्स है विच आर यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन. सारी वर्किंग कंडीशंस भी स्टैंडर्डाइज है. किस टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी, लाइटनिंग शुड आल्सो बी स्टैंडर्डाइज. ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इट सेज टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है उनका साइजेस भी फिक्स है, टाइप्स भी फिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिक्स है. अब आप एक एग्जांपल देख लीजिए वैगन आर का. वैगन आर सुजुकी कंपनी का प्रोडक्ट है. अभी देखिए इसमें कलर्स, द साइज रिमेन्स ऑफ ऑल द वैगन आर्स रिमेन्स द सेम. कलर्स आर फिक्स, 7 कलर्स आर देयर अवेलेबल इन द कार. सो यू सी कैरेक्टरिस्टिक्स, हर गाड़ी में आप 7 कलर की अलग अलग गाड़ियां हैं पर सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरेज, माइलेज, इंजन, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड.
Number 2, objective of standardization. To reduce the given line of product, to establish the interchangeability of manufactured parts and products. ये बोलता है अब इन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मान लीजिए कोई पार्ट खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है, then the product doesn't goes out of work. We can interchange the part which is damaged. गाड़ी का क्लच खराब हो गया तो दैट मीन्स वो गाड़ी बेकार नहीं है, जो भी हम इस पर इनपुट लगा रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज इनपुट है और उसे हम इंटरचेंज करके वापस से गाड़ी को वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। नंबर 3, टू एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. Since we have fixed standards for everything, the raw material used, everything, the quality of output is also standardized. Number 4, to establish performance standards for men and machines. जो भी मशीन्स, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी मैन पावर, जो स्किल्स चाहिए उन मैन पावर में, वो सब भी स्टैंडर्डाइज्ड रहेंगे, जिसके कारण से आउटपुट भी स्टैंडर्डाइज्ड रहेगा। तो टेलर कहता है स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी फेज ऑफ एक्टिविटी, राइट फ्रॉम प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल टिल द पैकिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जब हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स होगा, मैन पावर के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वर्क प्रोसेसेस के लिए, तो डेफिनेटली जो आउटपुट रिसीव हो रहा है वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। अब अगली पॉइंट आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। टेलर इससे बोलना चाहता था कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब है एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस एंड ग्रेड्स। स्टैंडर्डाइजेशन में तो क्या बोलता है कि फॉर देयर आर फिक्स्ड टाइप, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पर बोलता है यू हैव टू एलिमिनेट अननेसेसरी वेराइटीज, साइजेस एंड ग्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मान लीजिए आप जाते हैं कैफे कॉफी डे and then when you take up the menu card you see you have 100 varieties of coffee, but actual में देखा जाए तो कॉफ़ी की जो डिमांड है, the only 20 varieties are in demand. If cafe coffee day is spending the time preparing that 100 varieties every day, होगा क्या? Unnecessary resources का wastage होगा, unnecessary labor time waste होगा, unnecessary जो focus आप उस प्रोडक्ट की सेल पे कर सकते हैं जिसकी डिमांड है मार्केट पे, वो फोकस आप उस पर नहीं दे पाएंगे एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। सो टेलर का ये मानना था कि जिस चीज़ की डिमांड है उसी पर फोकस किया जाए। अननेसेसरी लार्ज वैरायटी शुड बी एलिमिनेटेड एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प टू रिड्यूस द इन्वेंट्री. This will help in increasing the turnover of those products which are actually in demand. So it says by using the technique of simplification, one can bring economy in operation and facilitate better control of activities. तो ये बोलता था कि eliminating unnecessary diversity of product sizes and types is very essential to reduce the cost of production and increase the turnover of the products which are actually in demand. Thank you. That's all for today. If you have any queries, please comment.